Okay, let's begin. Last time थोड़ा सा repeat कर दूं. We talked about the happening. Something happens because something happens, and nothing happens because nothing happens. Very relevant to entrepreneurship. We discussed Wajad Hussain. For him, COVID became a blessing. Entrepreneurship in one word, the whole course in one word is trust. Remember that for the rest of your lives. Remember that in terms of your own personal reputation and in terms of the entrepreneur's environment. We started talking about your venture, and it all starts with an idea and the fact that you have to act upon it. An idea is not the business. You have to make strategic decisions about it, or you have to look at both the internal and external factors before you define the strategy. There is a definition of strategy, और इसके ऊपर अमल करने के लिए you need planning, analysis, execution and evaluation. There are 4 strategic levels. Your main concern right now is with the business level, but सर आपका माइक म्यूट है. ओके, अपॉलॉजीज. मुझे पहले को बता देता. लेट मी क्विकली स्टार्ट ओवर अगेन. Okay, we talked about the happening. We talked about Wajahat, one of the entrepreneurs who's taken advantage of COVID-19. Entrepreneurship in one word, which is trust. The entrepreneur's environment, we are not talking about the core, which is your business. It starts with an idea, but just remember, idea is not a business. You have to design and implement strategies in order uh, to put your idea to fruition. और उसके लिए आपको internal और external factors देखने होते हैं. And then you design a strategy. Here is the definition of strategy and the 4 steps involved in making a strategy. Then there are strategic levels. 4 levels हैं. आपका इस वक्त currently concern business level पे होगा. And once you defined a strategy, आपको revenue strategy बनानी है कि आप किराया लेंगे, आप क्वालिटी को बेंचमार्क बनाएंगे या इंफॉर्मेशन. और क्योंकि आप लोग सॉफ्टवेयर के अंदर हैं, इसलिए इंफॉर्मेशन के बारे में आपको ज़्यादा पता होना चाहिए. So these are some of the strategies. Once you create a strategy, then you need a momentum factor or entry wedge. दहलीज में आपने घुसना है ताकि आपका पहली सेल जो है आप कैसे लेके आएंगे. Well, you can have a new product or service, you can have parallel competition, or you can go into franchising. And once you're in, then you have to stay ahead. ठीक है? And there are many ways of staying ahead. In addition, आपको जो एक चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपका आइडिया जो है वो किसी इंडस्ट्री के अंदर आता है.
और इंडस्ट्री जो है उसकी एक लाइफ साइकिल है, जस्ट लाइक द ह्यूमन लाइफ साइकिल, इंडस्ट्रीज हैव द सेम लाइफ साइकिल। ठीक है, सो इंडस्ट्री में इंट्रोडक्शन होती है इंडस्ट्री की, देन देयर इज ग्रोथ, देन देयर इज मैच्योरिटी एंड देयर इज डिक्लाइन। So as human being, if you look at your life, you're at the growth stage. और जब आप when you start giving back to society, eventually you get into maturity, and as life has it, your life will go into decline. इसी तरह इंडस्ट्री जो हैं they go through this. अब इस इंडस्ट्री का जो ग्राफ है इसको थोड़ा सा एक और मतलब एक और another way of describing the graph is कि there is an embryonic stage जिसके अंदर ग्रोथ कम होती है, कीमतें ज़्यादा होती हैं और रिस्क भी ज़्यादा होता है। एक दफ़ा चीज़ चल पड़े तो उसके अंदर ग्रोथ बहुत होती है, एंड देन ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड एवरीबडी गेट्स इनटू द एक्ट, तो देयर इज़ व्हाट वी कॉल शेक आउट, एंड देन after the shakeout the industry becomes mature, and after maturity many industries go into decline. So आज हम इन सारे स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे और हर स्टेज के ऊपर आपकी कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मैं आपको और मिसालें भी दूंगा, लेकिन और हम थोड़ी सी डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन एक कंसिस्टेंट इंडस्ट्री जो पीसी इंडस्ट्री है उसको मैं एक साथ मॉडल रख के तो वी विल डिस्कस कि भाई क्या क्या हुआ पीसी इंडस्ट्री के अंदर और हर स्टेज पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सो जब आप का जो भी बिजनेस है आपने ये देखना आप किस इंडस्ट्री में है और वो इंडस्ट्री किस स्टेज में है और उस स्टेज के मुताबिक आपको उसमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ठीक है, सो नंबर 1, ये पहली 4 जो लाइनें हैं ये आप देख लें। जो आखिरी है फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। सो इमर्जिंग, embryonic and growth, transitional growth leading to shakeout. So how does an industry emerge? An industry emerges जब कोई innovation लेके आते हैं, तो बिल्कुल नई चीज़ लेके आए जिससे सबको फ़ायदा हो तो इंडस्ट्री बन जाती है। इसकी 2 मिसालें मैं आपको देता हूँ हिस्टोरिकली। अब आप देखें कि पोस्ट ऑफिस कैसे इंडस्ट्री बने। भाई हम अभी भी कहानियाँ सुनते हैं कि जी एक बादशाह ने दूसरे बादशाह को पैगाम भेजा, तो पहले डाक तो थी, मैसेजेस जाते थे, लेकिन वो एक लेवल पे जाते थे। अगर आपने वैसे एक दूसरे को मैसेजेस भेजने हो तो उसमें हिस्ट्री में आप देखते हैं कि जी उसने कबूतर भेजा और कबूतर के अंदर मैसेज भेज दिया, ठीक है, एंड गॉड हेल्प यू इफ़ योर मैसेज गोज टू द रॉन्ग प्लेस। सो हुआ ये कि ब्रिटिशर्स ने दे क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस में क्या था, अगर आप लेट्स से इस्लामाबाद को देख लें तो मेलोडी के पीछे ये अपना अपारा के पीछे हमारा जीपीओ है, विच इज़ द सेंट्रल पोस्ट ऑफिस। सो ये हायरार्की वहाँ से स्टार्ट होती है। देन एवरी सेक्टर स्टिल हैज़ अ पोस्ट ऑफिस। आपको पता है पाकिस्तान में अभी 13,000 पोस्ट ऑफिस हैं और स्पेशली रूरल लेवल पे दे स्टिल प्ले अ वेरी की रोल, दे एक्चुअली प्ले अ वेरी की रोल इन बैंकिंग। जो पोस्ट ऑफिस का बैंक है इसको अभी भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, खैर, तो क्या हुआ कि और हर सेक्टर के अंदर पोस्ट ऑफिस है और फिर तकरीबन हर गली के करीब एक पोस्ट बॉक्स हुआ करता था और डाकिया आके डाक लोगों के घरों में देता है और जो पोस्ट बॉक्स है उससे डाक उठा के तो जाती है पोस्ट ऑफिस में। जो करीब के खत हैं वो उधर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं डाकियों को, और जो
इस एरिया से बाहर के हैं वो फिर उससे बड़े पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, और जो सेंट्रल जीपीओ में उस शहर के, और अगर नहीं है तो फिर वो दूसरे शहर के जीपीओ में चले जाते हैं, और इस तरह सॉर्ट होके फिर डाक। नाउ इससे लोगों को इतना फ़ायदा हुआ बिकॉज दे स्टार्टेड कीपिंग इन टच विद देयर नियर एंड डियर वंस, एंड soon they created a utility which became an industry. ठीक है, so the postal industry was spawned because एक उन्होंने ये लोगों को ये एडवांटेज दिया कि वो they could stay in touch. आप मुझे ये बताएं कि जब इंडस्ट्री बन गई तो इससे किस किस इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ होगा? समवन टेल मी कि जी एक पोस्ट ऑफिस के कॉन्सेप्ट की वजह से और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने फ्लरिश किया? हाँ जी, हु विल टेल मी? जी, पोस्ट ऑफिस से क्या क्या चीज़ें बिकती हैं? जी, एनीवन? जी, फैजान? जी, हसन? जी, यस एहसन? सर। जी, पोस्ट ऑफिस की वजह से कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को फ़ायदा हुआ, या सर किस कौन चीज़ कौन से? सी? पोस्ट ऑफिस से, डाक खाने से। अब लोगों ने डाक खाना इस्तेमाल करना शुरू किया तो जी डाक खाने से एसोसिएटेड लोग क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं? सर, स्टैम्प पेपर वगैरह ओके, और स्टैम्प्स खरीदते एनवेलप हैं, एनवेलप, एनवेलप वगैरह और कागज़, यस सर, कागज़। इंक। यस सर, और इसी तरह कुछ लोगों की वैसे भी जॉब्स लगी, जैसे हम जाते हैं अगर पोस्ट ऑफिस तो उधर बाहर बैठे होते हैं जो सिर्फ फॉर्म फिल करके देते हैं। आप सिर्फ ये देखें कि अगर पाकिस्तान में 13,000 पोस्ट ऑफिसेज हैं तो कम अज़ कम 13,000 पोस्ट मास्टर तो हैं ना, कम अज़ कम, और उनके साथ फिर यस डाकिये भी हैं। सो सो कितने लोगों को नौकरी मिल रही हैं? ठीक है, सो जब एक इंडस्ट्री बनती है तो उसके साथ और एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज को भी फ़ायदा होता है। ठीक है, जी फातिमा, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. ओके, यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू दिस? सर जो पोस्ट जाती होंगी वो ट्रांसपोर्ट से जाती होंगी, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा। एब्सोल्युटली, ठीक है। सो आप देखें कि एक एडवांटेज से कितना कुछ हो रहा है। एक इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री से और कितनी इंडस्ट्रीज का फ़ायदा हो रहा है। आप लोगों को आइडिया है कि कौन सी इंडस्ट्री है जिससे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज को फ़ायदा होता है, जिससे सबसे ज़्यादा और इंडस्ट्रीज चलती हैं, बल्कि आजकल हुकूमत का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है? सर कंस्ट्रक्शन। एग्जैक्टली, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब चलती है, एक घर के पीछे 100 से ज़्यादा इंडस्ट्री जो हैं वो हरकत में आती हैं। ठीक है, सो दिस इज़ वाई जनरली स्पीकिंग अगर स्टेट ऑफ द इकोनॉमी देखा जाए, आई रिमेंबर इन द वेस्ट वो हाउसिंग स्टार्ट कहते हैं कि जी कितने घर स्टार्ट हो रहे हैं, जितने घर स्टार्ट होंगे उतनी आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, क्योंकि एक घर के पीछे कितनी और इंडस्ट्रीज जो हैं वो चलती हैं। ठीक है, इसी तरह जब पोस्ट ऑफिस बन गया तो अच्छा,
ये इसको ये देखें, इस पे लिखा है बाय क्रिएटिंग यूटिलिटी। हम जब यूटिलिटीज़ की बात करते हैं तो हम बिजली, पानी, गैस, और मैं तो अब इंटरनेट को भी कहूँगा, इट इज़ बिकम यूटिलिटी, वो जिससे हर शख्स जो है ना, हर शहरी, उसको ज़रूरत हो और उससे फ़ायदा हो, दैट इज़ ए यूटिलिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय एवरीवन। ठीक है, ओके। सो पोस्ट ऑफिस इज़ वन सच एग्जांपल, जो कि एक इंडस्ट्री जो है वो इमर्ज की। बट पोस्ट ऑफिस का जनरली कंट्रोल जो है वो हुकूमत के पास ही होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट इज यू क्रिएट वैल्यू। नाउ पहले आप in the, let's say in the shaving industry, people had to go to the barber to get a shave, and Gillette figured out and thought कि भाई अच्छा नहीं, हम ये नहीं करते, हम लोगों को, हम जो ये फैसिलिटी है ये लोगों को दे देते हैं। सो दे क्रिएटेड द रेज़र, और उस रेज़र से बजाय इसके कि आप बार्बर के पास जाएं या बार्बर आपके पास आए, when I was young, every Friday the barber used to come to our place, so we had to be there. Okay? Now in this case, now you have a choice, whatever place, whatever time, whatever day. So they created this new value. On top of that, उन्होंने ये कहा कि भाई आप पूरे उसमें इन्वेस्ट ना करें, just buy it one time and then you can reuse the handle as many times as you want. और उससे आप देखें पूरी इंडस्ट्री जो है वो निकलेगी। सो यू कैन क्रिएट वैल्यू। अच्छा, अब मैं आपको, जो मैंने कहा था कि सारे स्टेजेस में मैं आपको पीसी इंडस्ट्री का आपको एग्जांपल दूंगा। सो पीसी इंडस्ट्री का एग्जांपल ये है कि जब लेट 70s में पीसी निकला तो शुरू में लोगों को उसका फ़ायदा नहीं पता था क्या है, until this Harvard professor came up with a software called VisiCalc. पहले यही लोग सोचते थे कि भाई इसके ऊपर गेम्स खेलें, तो nobody wanted to spend that much money for games. So VisiCalc जब निकली तो उसने स्प्रेडशीट में आपके इस सवाल का जवाब देना शुरू किया कि जी what if our sales grow 10% every year? What if our sales fall 10% every year? What if we can cut finances down by 30%? तो वो जब सारे सवालों के जवाब आने शुरू हो गए तो लोगों ने कहा भाई ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इसी के साथ आपकी वर्ड प्रोसेसिंग आ गई, इसी के साथ आपका प्रेजेंटेशंस आ गई, विच एवरीवन वांटेड टू यूज। सो PCs started becoming mainstream and everybody started knowing कि जी PCs का बड़ा फ़ायदा होता है। और I remember my first job was actually with a PC company, ठीक है, और हम लोग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों चीज़ें बनाया करते थे, लेकिन वो ये ज़माना था कि everyone was into making PCs. So तब कम से कम 200-250 कंपनीज थी जो PCs बनाया करती थी। Now जब एक इंडस्ट्री इमर्ज कर रही होती है तो उसके साथ अनसर्टेनिटीज होती हैं, because you don't know what's going to happen in the future, you don't know what rules will apply. जिस तरह इंटरनेट के अभी तक पूरे रूल्स नहीं बने, अभी तक पूरे SOPs नहीं बने। You don't know कि आपके फ्यूचर में कंपटीशन क्या होगा, you don't know कि आपको फ्यूचर में ये प्रोडक्ट किस तरह इवॉल्व होगा और किस तरह का लेबर चाहिए होगा, कितना आपको फाइनेंस रेज करना होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मैनेजमेंट है ना, ये बड़ी मुश्किल है। सो कौन फिगर आउट कि जी किस तरह के आपको मैनेजर्स चाहिए होंगे। रॉ मटेरियल आज ये है तो कल क्या होगा। शुरू में फ्लॉपी और हार्ड डिस्क थी, फिर उसके बाद CDs आ गई और USBs आ गई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड देन ऑल्सो यू डोंट नो कि कस्टमर आपका किस तरह होगा और उसका बिहेवियर और प्रोफाइल क्या होगा। ठीक है, सो जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनके साथ ये सब अनसर्टेनिटीज होती हैं। और PC की अगर आप देखें तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद द PC मार्केट।
अगर आप इस्लामाबाद की पीसी मार्केट देख लें तो इन दी लेट 80s यहाँ कोई अगेन कोई 200 दुकानें होंगी जो सिर्फ पीसीज बेचती थी या उसके एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं वो बेचनी शुरू की थी उन्होंने। ठीक है, सो शुरू में आपका मार्जिन अच्छा होता है, ग्रोथ रैपिड होती है, पर रिस्क भी बहुत होता है। And then we move on to what is known as a transitional time, growth leading to shakeout. Shakeout में ये होता है कि अब अगर यहाँ 200 दुकानें हैं तो they are competing with each other. So 200 दुकानों में हर एक ने माल मंगवाना है, किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा, किसी की अच्छी रेपुटेशन होगी, किसी की बुरी होगी। अब दूसरा यह है कि ये लोग क्यों इस बिजनेस में आए हैं, बिकॉज देयर इज मनी इन इट। एंड हाउ डू यू देन सेट अप बिजनेसेस? वेल, आपने सोचा कि भाई अच्छा 1,00,000, 1,50,000 का या 2 लाख तक का एक पीसी आता है और तब प्रॉफिट मार्जिन लेट से एक पीसी के ऊपर 30 से 40 हज़ार हो, आप 10-15 बेच दें महीने में, और उस ज़माने में 3 लाख 4 लाख बनाना was गुड मनी। आपने भी दुकान खोल ली, और आपने क्या किया, आपने कहा कि जी मैं 30,000 पे नहीं, मैं 25,000 के प्रॉफिट पे बेच देता हूँ। जब आपने 25,000 के प्रॉफिट पे बेचा तो प्रेशर आया ना। दूसरा ये, आप तब एक इंजीनियर होता था, सारा सॉफ्टवेयर चढ़ाता था, आपने इंजीनियर को वो अगर 30,000 दे रहे हैं तो आपने 35 दे के तोड़ दिया। सो प्रेशर सारा आता है इंडस्ट्री के ऊपर, एंड देन पीपल गो आउट ऑफ बिजनेस। और ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा था? ग्लोबल लेवल पे IBM आ गया पीसीज में, सोनी आ गया पीसीज में, और बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई पीसीज में, विद द रिजल्ट कि जो कस्टमर है वो यही सोचता है कि भाई ये छोटी कंपनी अगर कल बंद होगी तो हम क्या करेंगे। सो दे गो टुवर्ड्स बिग नेम्स, एंड slowly the market moves towards what is called stability। ठीक है, और अब आप देखें इस वक्त ये स्टेज है कि आपको 10 पीसीज मैन्युफैक्चरर्स के नाम भी नहीं पता होंगे, whereas at one time there were over 200। सो जब स्टेबिलिटी पे जाते हैं तो मैंने कहा कि जी समटाइम्स रिसोर्सेज आर स्केर्स। एक वक्त मुझे याद है थाईलैंड की किसी फैक्ट्री में जहाँ हार्ड डिस्क बनते थे वहाँ फ्लड आ गया, उससे डिस्क बिकेम स्केर्स, एंड दैट हैड अ बिग इफेक्ट ऑन द मार्केट है। और कस्टमर जो कि पहले बड़ा सादा होता था वो अब और सोफिस्टिकेटेड हो गया। You know, my son's friends then started asking him कि जी आप ये GPU लेके आओ और ये वाटर कूल्ड होना चाहिए, और दुकानदारों को ये चीज़ें समझ में नहीं थी, बिकॉज द कस्टमर गॉट सोफिस्टिकेटेड, उन्होंने काम छोड़ दिया। सो जब ये शेक आउट होता है, हाउ डू यू सर्वाइव? नंबर 1, यू बिकम लीन, यानी कि अपने खर्चे कम करें। अगर कम बिक रहा है और आपने खर्चे कम कर दिए हैं तो फिर भी आपका प्रॉफिट ठीक होगा। सेकेंडली, आप अपनी रेपुटेशन बना लें अच्छे काम करने की। वो एक एग्जांपल है, तब भी दुकान थी पार्क मैकलिंक्स की, और अभी तक वो चल रही है क्योंकि उसने अपनी रेपुटेशन बना ली है। ठीक है, सो आप चेकआउट में आप फंसते क्यों हैं? आप अपने आप को यूनिक समझना शुरू कर देते हैं, एंड पीपल हैव चॉइसेस, दे गो टू अदर्स। आपके पास कैपेसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, और जब ग्रोथ स्टेज में नए नए मॉडल्स फ़ौरन आते हैं, उस ज़माने में हर 6 महीने बाद एक नया पीसी आ जाता था। सो अगर आपने 386 के 2 कंटेनर मंगवा लिए हैं और 6 महीने में नहीं बेचे, 6 महीने बाद 486 आ जाएगा, सारे लोग 486 के पीछे भाग गए। सो यू हैड एक्सेस इन्वेंट्री जो कोई नहीं खरीदता था, बिजनेस लॉस में गया, एंड यू वेंट आउट ऑफ बिजनेस।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये शेक आउट स्टेज पे होती हैं। शेक आउट से फिर इंडस्ट्री जो है वो मैच्योरिटी की तरफ जाती है। मैच्योरिटी में ये होता है कि इंडस्ट्री को सिर्फ 3-4 कंपनीज, अ फ्यू कंपनीज वो संभालती हैं, और जब वो संभालती हैं तो जनरली स्पीकिंग ग्रोथ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, इनोवेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। इस वक्त आजकल पीसीज में क्या इनोवेशन आ रही है, फॉर दैट मैटर फ़ोन्स में जो शुरू में इनोवेशन थी वो अब बहुत कम हो गई है। अब रैम बढ़ा देते हैं, कैमरा और बेहतर कर रहे हैं, कोई ऐसी कोई स्पेक्टेकुलर चीज़ नहीं आई। सो देयर इज़ लिटिल इनोवेशन। तो उसमें प्रोडक्ट और प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट्स करते हैं। मसलन अगर आप लेट्स से सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री देख लें, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री के अंदर आपके 2 लीडर्स हैं, कोक और पेप्सी। उनको जनरली कोई चैलेंज नहीं करता, और वो अपने जो हैं प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो क्या करते रहते हैं, वो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स की कोशिश करते रहते हैं। अब मेगा फैक्ट्रीज में बना रहे हैं, या हो सकता है उन्होंने जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी कॉस्ट को कम कर दिया हो। सो दीज आर सम ऑफ द वेज, दिस इज़ हाउ द मैच्योरिंग इंडस्ट्रीज वर्क। अगर आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री देख लें, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर आप पिछले 15-20 साल से तो कोई ख़ास चेंज नहीं आया। अब वो रॉन 92, रॉन 93, रॉन 97, बस ये चीज़ चल रही है। एंड बेसिकली द मैच्योर मार्केट्स are the same, and it's very difficult to enter a mature market. So one strategy is you can attack the leader very tough. हालांकि अमृत कोला ने कोक और पेप्सी को डायरेक्टली अटैक नहीं किया था येट, इवन दो इट वाज चीपर, उसका टेस्ट भी कोई इतना बुरा नहीं था, इट स्टिल कुड नॉट रियली पेनिट्रेट द मार्केट, और वो ख़त्म हो गया। ये जो आखिरी चीज़ है ना, स्पेशलाइजेशन, ये ज़रा इस पे मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। वो ये है कि इन अ मैच्योरिंग इंडस्ट्री आप उनको अटैक ना करें, बट एक स्पेशलाइजेशन ढूंढ लें जिसकी वजह से आप एक्चुअली एक नई इंडस्ट्री बना सकते हैं। सो आप सब लोगों ने कोक पेप्सी तो पी हुई है, लेकिन इन द लास्ट 10 years और सो एक और एनर्जी ड्रिंक है जिसकी वजह से जो यूथ को अट्रैक्ट करती है। सो वो कौन सी ड्रिंक है जिसकी वजह से एक नई इंडस्ट्री बन गई है? Who will tell me that? जी जैद, ईशा। सर रेड बुल। जी रेड बुल, गुड गुड, that's a right example। रेड बुल ने कोक और पेप्सी को डायरेक्टली ना बुरा भला कहा, ना उनको चैलेंज किया, लेकिन रेड बुल ने ये उनको सिर्फ आपको कहा कि भाई, और यूथ को टारगेट किया, थके हुए हो, कल इम्तिहान हो रहा है या बहुत एडवेंचर करना है, तो ये रेड बुल पी लो तो आपको ऐसी एनर्जी आएगी कि आप क्या क्या चीज़ें कर लोगे। ठीक है, एंड पीपल स्टार्टेड बाइंग इनटू दैट वैल्यू, एंड प्रीटी सून फ्रॉम अ मैच्योर इंडस्ट्री दे क्रिएटेड अ न्यू इंडस्ट्री। इसी तरह आपकी एक और मिसाल है इसकी, ये जूतों की। जब आप छोटे होते थे और जिस दिन क्लास में पीटी होनी होती थी, आप लोग कैनवस के जूते पहनते थे, वो हल्के भी थे, सस्ते भी थे, until someone came up with the concept of a sport shoe। और स्पोर्ट शू की वजह से ये एडिडास, नाइकी, ये सारे जो लोग आए, तो आपका जो स्पोर्ट शू है उसकी एक कंप्लीट नई इंडस्ट्री बन गई। बल्कि अब वो जूते ज़्यादा महंगे हो गए हैं बनिस्बत आम जूतों के।
ठीक है. So if you can then create a new industry anytime, and I'll be very happy if one of you can spawn a new industry. Okay, so this is about maturing industry. तो वो जो 4 stages हैं, इसी तरह पीसी की जो है इंडस्ट्री वो मैच्योर बल्कि हो चुकी है. तो मैच्योरिटी से आप जाते हैं डिक्लाइन में. डिक्लाइन में आपकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है या सेल्स बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है. और इसकी वजह क्या है? कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कोई लोगों के टेस्ट चेंज हो जाते हैं, या पॉपुलेशन में चेंजेस आ जाते हैं. अगर आप हमारी पॉपुलेशन डेमोग्राफी के हवाले से देखेंगे और जापान की पॉपुलेशन देखेंगे तो बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है. सो उसकी वजह से उनकी डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो फ़र्क हैं, हमारी डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज वो फ़र्क है. ठीक है. तो लेट से एक ज़माने में यहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए टांगा इस्तेमाल होता था. अब सोचें उस टांगे से एसोसिएटेड कितनी इंडस्ट्री थी. चारे की इंडस्ट्री, छांटा की इंडस्ट्री, उनकी जो बत्तियां थी वो इंडस्ट्री, वो लकड़ी की इंडस्ट्री, जो उनकी घंटी थी उसकी इंडस्ट्री, चारे की इंडस्ट्री, घोड़े की इंडस्ट्री इटसेल्फ. ठीक है. बट जैसे टांगे गायब आए द इंडस्ट्री वेंट इनटू डिक्लाइन. सो आप सीडीज देख लें, सीडी की इंडस्ट्री तकरीबन ख़त्म हो गई है. So you can to be successful, अगर आप लेट से एज एन एग्जांपल सीडीज जो हैं आप उनको कप होल्डर्स बनाना चाहते हैं या कोई नई चीज़ उससे कर लें, तो आपको एसेट भी सस्ते दाम मिल जाएगा और आप कोई नई ऐसी चीज़ ढूंढ के उसी टेक्नोलॉजी से बना लें तो आप उससे भी सक्सेस निकाल सकते हैं. ठीक है. सो मैं तो कहूँगा इस वक्त के जो पीसी की इंडस्ट्री है इट इज़ इन डिक्लाइन. इट हैज़ बीन ओवरटेकन बाय द लैपटॉप इंडस्ट्री. जब when I started teaching in 2008, there were at least 3 students in the class who had never seen a PC. उसके बाद अभी तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी स्टूडेंट हो उसने पीसी इस्तेमाल ही ना किया हो. ठीक है. Not only that, most of you now have laptops. So the PCs have actually gone into decline. It's a declining industry, overtaken by the लैपटॉप इंडस्ट्री. अब आपकी सीडी की इंडस्ट्री डिक्लाइन तकरीबन ख़त्म हो गई है, ओवरटेकन बाय द यूएसबी इंडस्ट्री. ठीक है. सो दैट इज़ अबाउट द 4 स्टेजेस. सो शुरू में एम्ब्रियोनिक एंड ग्रोथ, उसके बाद शेकआउट लीडिंग टू मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइनिंग. सो आपको जो आइडिया आता है आपने ये देखना आप किस इंडस्ट्री में है और इंडस्ट्री के स्टेज में है, और हर स्टेज के लिए आपके पास स्ट्रेटजीज हैं. नाउ देयर आर सम बिजनेसेस जो कि इन चारों स्टेजेस में कभी फॉल नहीं करते. दे आर नोन एज फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज. ठीक है. एंड लिखा हुआ है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स ड्यू टू लो एंट्री बैरियर्स. लो एंट्री बैरियर का मतलब है कोई भी ये दुकान खोल सकता है. तो आपके गली मोहल्ले में कौन सी ऐसी दुकान है जो कि हर कोई खोल सकता है? जी, हु इज गोइंग टू टेल मी दैट? आपके मोहल्ले में कौन सी दुकान है, बल्कि हर मोहल्ले में कौन सी दुकान है जो आपको नज़र आती है? बिकॉज एवरीवन कैन ओपन दैट शॉप. जी, एनीवन? अब्दुल्ला? तलहा? सर करियाना. करियाने की शॉप बिल्कुल सही है. सो करियाने की शॉप जो है
वो कोई भी खोल सकता है, बिकॉज इट हैज़ लो बैरियर टू एंट्री। आप जाएं, दुकान किराए पे लें, सामान खरीदें और किराने की दुकान खोल लें। इसके अलावा और कौन सी दुकानें हो सकती हैं जो गली मोहल्ले में नज़र आती हैं? हर गली मोहल्ले में नज़र आती है। सर दही की दुकान। दही की दुकान बिल्कुल सही है। तंदूर, दही, तंदूर, बेकरी, डबरोटी की दुकान, ठीक है, दर्जी होते हैं। ये सारे जो है ना, दे कम इन द रेल्म ऑफ फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, ठीक है। और इनकी देयर आर मेनी मार्केट नीशेस, और उसकी मेन वजह यही होती है कि इनकी बैरियर्स टू एंट्री नहीं होते, कोई खोल सकते हैं और हर एक को ज़रूरत होती है इनकी। और इनके अंदर भी डिक्लाइन आता है। मसलन पान की दुकान, पहले हर गली पान और सिगरेट की दुकान हर गली कुचे में होती थी, लेकिन अब नहीं है। सो विद इन फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्रीज भी डिक्लाइन आता है, ठीक है। नाउ द मोर प्रोफेशनली यू मैनेज योर शॉप, द बेटर ऑफ यू आर। कुछ लोग इसको एक्सपैंड करने के लिए फ्रेंचाइजिंग के मॉडल पे चले जाते हैं, और इसकी जो इस्लामाबाद में मिसाल है वो शाहीन और वाटसन F6 में आई थिंक खुले थे, और अब वो हर सेक्टर के अंदर है, हर मेजर सेक्टर के अंदर, बिकॉज दे गॉन इनटू द मॉडल ऑफ एक्सपेंशन एंड सम ऑफ देम आर यूजिंग द फ्रेंचाइजिंग मॉडल। मसलन मैं G11 में गया, वाटसन में, और वहाँ मैं ऐनक की दुकान में गया तो मैंने उनको पूछा जी आप वाटसन हैं? कहते नहीं, हमने इनसे फ्रेंचाइज ली है। सो दे यूज द वाटसन नेम, बट दे हैव देयर ओन बिजनेस, और वो उनको किराया देते हैं, ठीक है। सो यू कैन हैव स्पेशलाइज्ड नीश मार्केट्स। ये जो हारून्स है, दैट्स अ स्पेशलाइज्ड नीश मार्केट। तो so fragmented industries do not fall on the industry curve. Okay, I have now discussed the industry life cycle, and I have also discussed fragmented industries जो कि उस लाइफ साइकिल के ऊपर डायरेक्टली नहीं आती। सो इसके बाद आपने बेसिकली अपॉर्चुनिटी असेसमेंट के लिए ये 5 स्टेप से आप गुजरते हैं, और आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। ये इंटरनेट बिजनेस मॉडल्स हैं, क्योंकि आप लोग इस वक्त ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। तो दीज आर सम बिजनेस मॉडल्स दैट यू कैन look at. All right.